deep breath in and relax. 3 बार ओंकार करते हैं. Let's start. Join your hands, prayer position. Rub your palms on eyes and slowly open. Let us start with pranayam session. So सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति. First round, sit erect, head, neck back in a straight line. Take a deep breath in and relax. Another deep breath for Kapalbhati. Let's start. 30 strokes. Relax. Normal breath in and relax. Again, take a deep breath in. Kapalbhati 30 times, 30 strokes. And relax. Normal breathing. Take another deep breath in. Last time, 30 strokes. And relax. Observe your breath. Becoming more deeper at every step. Now we will do Ujjayi Pranayam. Ujjayi Pranayam, गले से श्वास लेना है. You should feel the vibrations here in the throat. Okay, you can touch here also or keep it in Gyan Mudra and on your lap. Okay, whatever you wish. And we will do Ujjayi Pranayam 5 times. Let's start.
Hold. Exhale, same way. And relax. Second round, Ujjayi Shwas. Take a deep breath in. Hold. Exhale. Third round, breathe in. Hold. Exhale. Fourth round, again, you should feel the vibrations on the throat. Hold. Exhale. This is very good for thyroid regulation. Thyroid gland हमारा यहाँ पे रहता है, and for our throat and to develop confidence in speech. Last time. Hold. And relax. If you have eaten anything, जैसे कभी मैदा, चीज, बटर कुछ खाया होता है तो you feel यहाँ पे stick हो गया है, गले में stick हो गया है, that time उज्जयी श्वास करने से you will feel that you are able to gulp it down. इसे वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, जो स्टिकी हो जाता है कभी जैसे साबुदाना या कोई ऑयली चीज या स्टिकी चीज खाने की वजह से यहाँ पे होता है, then we feel it goes away and it helps to clear and it helps to deepen our breath. कभी कभी deep breathing होता भी नहीं है, so it helps to for deep breathing also. Normal breathing, concentrate, feel the difference, feel the depth of the breath after doing Ujjayi Pranayama. All these pranayam are preparatory things so that we can do kumbhak, मतलब कि holding of the breath, वो करने के लिए ये सारे preparatory pranayam है. You should be able to deep breathe till your stomach, नाभि तक. ब्रीथ करके देखिए कि सिर्फ चेस्ट तक जा रहा है, शैलो ब्रीदिंग है या डीप ब्रीदिंग कर पा रहे हैं. Now we will do Ujjayi Pranayam, holding our shoulder blades. हाथों को ऊपर करके shoulder blades को touch करेंगे and Ujjayi Pranayam 5 times. Let us start. Ujjayi Shwas in.
hold, relax. Ujjayi Shwas in, hold, relax. Ujjayi Shwas in, hold, relax. Ujjayi Shwas in, hold, relax. Last time, Ujjayi Shwas in, hold, relax. And relax. Relax your body, your head, neck, back in straight line. Little bit chin up so that your nostrils get open. The air passage becomes easy. Feel the difference in breathing again. This way जो chest में blockages होते हैं वो release होते हैं. Relax. Next we will do Bhastrika Pranayam. Keep your thumbs like this on your shoulders. Okay. Every time you have to breathe in और झटके से नीचे आना है. Breathe out. Okay. Let's start. First round, you have to do it 20 times. Breathe in 1, 2, and relax. Hands on your thighs, on your legs, chin up, deep breathe. Feel the difference in the breath. At every stage, it will go one level up, more deeper. Taking out the blockages from inside. Again, next one, second round, let's start 20 times. 1, 2, 10, 15, and relax.
Observe your breath again. Feel the impurities coming out with every exhalation. Energy going inside the body, positive energy, with every inhalation of the breath. Cells becoming active. Skin is breathing now. All the parts of the body is breathing. Feel the vibrations, energy in your body. Take a deep breath in and relax. Last round, Vastrika, 20 times. Let's start. And relax. Deep breathe. Your head, neck, back in straight line. Observe your breath. Difference in the breath. This way we are creating pressure in our body to release the blockages, to make easy pathway for the air to go inside. इसलिए कपालभाति भस्त्रिका करते हैं. Ujjayi. Now once we had made easy way pathway clear for the oxygen, now we will do Anulom Vilom Pranayam. Mudra, your index finger, middle finger closed. Let's start. We will do 10 times. First, one round is left say inhale, right say exhale, then right say inhale, left say exhale. So this will be one round. We will do 10 rounds. Let's start. One, two, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 'Last one now. And relax. Now feel the change in your breath. Normal breathing. This way, the mind becomes more calm, peace, composed, also active and attentive. Next pranayam, we will be doing Nadi Shodhan pranayam with a variation. Same mudra रहेगी, इसमें difference क्या करना है? You have to first, left nostril will be closed, right से 2 times inhale and then hold, then 2 times exhale like this. So 2 times exhale and again right say 2 times inhale, hold, 2 times exhale. So this way we are creating more pressure for oxygen to go inside. Okay, and by holding कुंभक करने से एक pressure create होता है, so that while exhalation जो भी toxins है with the help of air it goes out. Okay, and जो भी dead cells है हमारे में वो active हो जाते हैं. We'll do only 5 times. Let us start. Breathe in 2 times. Hold. Exhale 2. Again breathe in 2 times. Hold. Exhale. Second round. Hold.
hold, third round, hold, exhale, breathe in, hold, out. Last two, hold, last one. And relax completely. Feel the change in the energy, change in the vibrations with every inhalation. Incoming breath energizes your body. Outgoing breath relaxes the body. Feel the energy circulating inside, in the nerve endings, like in the palms, facial muscles, back, neck, legs. कुंभक करेंगे अभी. फर्स्ट इज अंतर कुंभक. कुंभक मीन्स होल्डिंग. अंतर मतलब कि अंदर. ब्रीद इन किया और होल्ड किया एंड आउट. इसको बोलते हैं अंतर कुंभक. लेट अस डू 5 टाइम्स. ब्रीद इन, होल्ड, release. Again, breathe in, hold, release. Third round, hold, release. Last two, breathe in, hold, release. Last one, hold, release. लास्ट प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम.
दिस वे जो भी हीट अंदर का हीट है उससे बाहर जाएगा और अंदर एक कूलनेस यू विल फील. ओके, टू रोल योर टंग, breathe in and normal breath out. Breathe in. Normal breath out. Normal breath out. Sheetkari. Hold your tongue between your teeth. Now relax. Take a break of few seconds. If you want to release your legs and little bit rotate it side to side. Rotate ankles, toes. You're sitting for half an hour in a continuous stretch. And another few minutes, we will start with meditation. Okay, let us start. Completely relaxed, whatever posture you like, whatever position you like, sit in a comfortable position. Eyes closed, little bit chin up. Take a deep breath in and relax. Slowly observe your physical body from head to toe. Start surrendering your body to the universe. Head, face, neck, shoulders, hands, chest, stomach, back, both the legs. Surrender yourself to the cosmos. Feel you are sitting inside a deep well, going deeper and deeper in the well. You are not able to see anything. आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है. जो प्रकाश था, जो थोड़ी सी लाइट दिख रही थी, वो भी धीरे धीरे बंद हो रही है. You're going deeper and deeper into a deep well. You don't know where you are going. धीरे धीरे आपको आसपास का भी देखना बंद हो गया. खुद की बॉडी भी नहीं दिखाई दे रही. You are going deeper and deeper, not able to observe even your own body part. But एक विश्वास है that I am fine. I am here.
even if you are not able to see the surrounding, your clothes, your body, but you know I am there. मैं हूँ. धीरे धीरे you see the depth of the well is increasing. Slowly you are seeing darkness all around, completely black. It is dark around you. Now you can feel the going deeper inside has been stopped. You can feel that you are sitting at a one place. कहीं पे बैठे हैं जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है. But you know that you are there. You can feel, yes, I am there. I can feel myself. एक प्रकाश की किरण देखते हैं. वो प्रकाश आपका गुरु है. गुरु वो है जो डार्कनेस से बाहर निकलता है और एक सही पाथ दिखाता है. वो गुरु एक लाइव पर्सन हो सकता है वो अभी बॉडी में नहीं है, हो सकता है कि वो कोई मंत्र है, कोई भगवान है, कृष्ण, ईश्वर, गणेश जी, कोई मूर्ति है जिस पे आपको बहुत विश्वास है. उस गुरु को अपने सामने देखिए. ट्रस्ट करिए उस गुरु पे. गुरु वही है जिस पे आंख बंद करके विश्वास है कि वो हमें सही रास्ता दिखाएगा. हम 5 बार मकार करेंगे. इस साउंड करेंगे and we will increase our energy through it. Feel the energy being received by our guru और खुद में create करना है with the help of sound energy. Take a deep breath in. Now you have taken energy from your guru,
from your Ishwar. Now you're completely filled with energy, positive energy. अब हम रेडिएट करेंगे पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी के बाहर विथ हमिंग साउंड. रिसीव करते जाएंगे गुरु से, बॉडी से रेडिएट करते जाएंगे पूरे यूनिवर्स में, उस डार्कनेस में जहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है. टेक अ डीप ब्रेथ इन. Very slowly we'll do last time humming. Relax completely. हजारों वर्ष पहले एक महर्षि थे, महर्षि पतंजलि. हर जगह पे उनकी जो फोटो दिखाई है दिखते हैं जैसे बहुत पतले से, बहुत लंबे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, रेडिएंट. उन्होंने बहुत तपस्या करी थी और एक अष्टांग योग करके बनाया ताकि लोग इसको फॉलो कर सकें, आसानी से समझ सकें कि जो हमें लाइफ दिया गया है भगवान से, उस लाइफ को जीना कैसे है और एक एम कैसे बनाना है, एक पर्पस कैसे बनाना है, खुद के लाइफ को मीनिंग कैसे देना है, इसके अलावा मोक्ष की कैसे प्राप्ति करनी है. अष्टांग योग बनाया. अष्ट मतलब 8, अंग मतलब लिम्ब, मतलब 8 तरीके बताए हैं जिसको फॉलो करना जरूरी है. सीक्वेंस में ना किया तो चलेगा मगर 8 अपने लाइफ में उतारना जरूरी है. हर एक अंग उतना ही जरूरी है जितना हमारे बॉडी के पार्ट्स जरूरी हैं. हर ऑर्गन उतना ही इम्पोर्टेंट है. हर एक सेंस ऑर्गन उतना ही इम्पोर्टेंट है. उसी प्रकार हर एक अंग अष्टांग योगा का उतना ही इम्पोर्टेंट है. पहले बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ये 8 अंग बताए हैं जिनको हमें अपने लाइफ में उतारना है धीरे धीरे और उसको ऑब्जर्व करना है कि ये करने से मेरे में क्या चेंजेस आया है. यम मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन्स, जो बाहर के डिसिप्लिन्स हमें फॉलो करने हैं इस दुनिया में, इस संसार में रहते हुए. वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. मतलब अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी पे हाथ नहीं उठाना है, किसी को कुछ बुरा नहीं बताना है,
बुरा नहीं बोलना है, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली। सिर्फ फिजिकली हाथ उठा के मारना ही अहिंसा नहीं होता, बट माइंड से किसी को बुरा बोलना भी अहिंसा होता है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी अहिंसा होता है। तो उसको प्रैक्टिस करना है, अहिंसा को। सत्य झूठ नहीं बोलना है। एक झूठ बोलने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और हर चीज को याद रखना पड़ता है। सत्य बोलते हैं तो फ्री माइंड से रह सकते हैं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य हमेशा याद रहता है। अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग। कुछ भी नहीं चुराना है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली और इमोशनली भी नहीं चुराना है। मेंटली मतलब किसी को देख के काश ये मेरे पास होता, सिर्फ इतना बोलना भी मेंटली चुराना होता है। इमोशनली काश ये मुझे उतना प्यार करता जितना कोई और किसी और को करता है, इसको भी स्टीलिंग बोलते हैं। हमें प्यार देना है, हमें हर चीज प्रोवाइड करनी है। नेचर ने हमें गिविंग बनाया है, उस चीज को जानना है, उस चीज को पहचानना है कि जितना शेयर करेंगे, जितना देंगे, उतना हमें खुशी मिलेगी, हम खुद में रह सकते हैं। और सोचने की जरूरत नहीं है, 100 गुना ज्यादा आपको खुद अपने आप मिलता है। हो सकता है उसी जगह से नहीं मिले, मगर कहीं और से मिल सकता है। ब्रह्मचर्य, सेक्सुअल रेजिस्टेंस। जिस तरह खाने के ऊपर कंट्रोल करना है, जितनी भूख है उतना ही खाना खाना है, सेम वे ब्रह्मचार्य के साथ, सेक्सुअल रेजिस्टेंस के साथ, जितनी भूख है, अर्ज है, उतना ही आगे बढ़ना है। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एडिक्शन नहीं करना है, चाहे वो खुद के लिए है या किसी चीज के लिए है। यमों में आखिरी आता है अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस। खुद के ईगो को साइड रख के ये जानना है कि हर चीज नेचर की है, जानना है कि हर चीज उसी 5 धातु से बनी है, पंचकोश से बनी है, और हर चीज नेचर की बनी है, हमारा कुछ भी नहीं है। हो सकता है टेम्पररी हम उस चीज पे अपना नाम लगा रहे हैं, बट सून इट विल ऑल गो अवे। चाहे घर है, चाहे कोई चीज है, चाहे नेम है, फेम है, मनी है, ये सब शॉर्ट पीरियड के लिए है, सिर्फ उतने ही टाइम के लिए है जितने टाइम के लिए हम जिंदा हैं। सब चला जाएगा, सब छोड़ के जाना है। इसको समझ लेने से एक कामनेस रहता है, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता, डिटैचमेंट भी नहीं होता। उसको कैसे बैलेंस करना है वो समझ में आता है। जानो को कि ये सब टेम्पररी है, उतना ही चाहिए जितना इस वर्ल्ड में हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए। फिर हम दूसरों को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं कि किस चीज से दूसरे एडिक्टेड हैं, जब हम खुद को जानने लगते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं। ये हमारा फर्स्ट है अष्टांग योगा में। यम, एक्सटर्नली हम हमें
क्या क्या करना चाहिए। दूसरा कहते हैं नियम। नियम मतलब इंटरनल डिसिप्लिन जो हमें फॉलो करने हैं। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब हाइजीन मेंटेन करके रखना है। हाइजीन में क्या क्या आता है? हमारा फिजिकल हाइजीन, मेंटल हाइजीन, इमोशनल हाइजीन और सराउंडिंग। सराउंडिंग दिखता है तो हम साफ रखते हैं, फिजिकली भी दिखता है हमें तो स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं। मगर मेंटली और इमोशनली, स्पिरिचुअली दिखता नहीं है, उसको समझना है। जितना बॉडी में रेस्टलेसनेस है, जितना बॉडी में गुस्सा है या जेलसी है, वो सब क्लटर है, उसको साफ रखना है, क्लियर रखना है। ये सब आएगा और जाएगा, ये जानना है। ह्यूमन बॉडी है तो इमोशंस रहेंगे, फीलिंग्स रहेंगे, प्यार भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा, बट ये जानना है कि ये टेम्पररी है, साफ करते रहना है, हर चीज को क्लियर करते रहना है। इमोशंस को भी क्लियर करना है, अपने माइंड को भी क्लियर करना है, अपने ब्रेथ को भी क्लियर करना है। संतोष, खुशी फील करना है, खुश रहना है, तो हम दूसरों को खुश कर पाएंगे। दूसरों को खुश करके हम खुश नहीं रह सकते, हमें खुद में खुशी डेवलप करनी है, तब हमें हर चीज खुश नजर आएगा। वर्ल्ड पूरा हमारे माइंड में है, जैसा हम सोचते हैं हमें लगता है वैसा ही ये संसार है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमें हर चीज वैसे नजर आती है। तो वो एक हैबिट बनानी है कि जानना है, और एक हैबिट एक बेबी से लेना है कि एक बेबी जैसे कम से कम 400-500 बार हंसता है, उसके साथ हंसने का प्रैक्टिस करना है, उसके खुशी को जानने का प्रैक्टिस करना है कि उसे कैसे छोटी छोटी चीजों में खुश होना आ रहा है, वो कैसे बार बार खिलखिला के हंसते हैं, वो जानना है। उसके साथ हंसने से एक हैबिट क्रिएट होगा संतोष का। स्वाध्याय, खुद के साथ थोड़ा सा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठ के जानना है कि आज मैंने क्या किया, क्या फीलिंग्स हैं आज के, क्या इमोशंस हैं आज के। सिर्फ जानना है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ जानना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। 1 मिनट सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी बहुत होता है पूरे दिन में, बट जब हम स्वाध्याय करने के लिए 1 मिनट बैठते हैं, वो पूरे दिन के जितना लगता है, क्योंकि वो उतना इफेक्टिव होता है। तपस, स्ट्रगल करना है, खुद को बिठाना है, ये एक तपस्या है। हर सुबह उठना, हर सुबह डेडिकेट करना एक चीज के लिए, इसको तपस्या बोलते हैं। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में बिलीफ रखना, फेथ रखना किसी चीज पे, सिर्फ ईश्वर पे नहीं, अगर किसी और पे फेथ है, किसी इंसान पे, मूर्ति पे, भगवान पे, मंत्र पे, पूरा फेथ रखना है। किसी पे डिस्ट्रस्ट नहीं करना, उस पे ट्रस्ट रख के करना है। ये हुआ हमारा नियम। आसन हम करते हैं फिजिकली एक्टिव होने के लिए, अलग अलग पोस्चर करते हैं ताकि हमारी बॉडी हमें साथ दे।
जब हम मेडिटेशन प्राणायाम करने के लिए बैठे तब ऐसा नहीं हो कि 5 मिनट होने के बाद पैर दर्द हो रहे हैं, पीठ दर्द हो रहा है, इसलिए हम आसन करते हैं। फैट लॉस या वेट लॉस के लिए नहीं, वो एक बाय प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है। बट अल्टीमेट आसन का एम होता है कि हम प्राणायाम के लिए बैठ सके, हम बैठ सके मेडिटेशन करने के लिए। प्राणायाम होता है ब्रेथ कंट्रोल। खुद के ब्रेथ को कंट्रोल कैसे करना है प्राणायाम के थ्रू, इसलिए एक सीक्वेंस बताया है, तरीके बताए हैं किस तरह हम ब्रेथ को कंट्रोल करके अपने माइंड तक जा सकते हैं, अपने माइंड का जो लेवल है वो इंक्रीज कर सकते हैं, विल पावर इंक्रीज कर सकते हैं, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्याहार मतलब एक जगह पे टिकना। सबसे पहले हर सुबह आके मैट पे आना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मैट पे आने के बाद तुम योगा करते हो नहीं करते हो, प्राणायाम करते हो नहीं करते हो, वो अगला स्टेप है। बट हर एक दिन सुबह उठ के योगा मैट के ऊपर आना, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। विड्रॉल ऑफ योर सेंसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मेडिटेशन करते हैं तो एक चीज के ऊपर आके टिकना, एक जगह पे बैठना, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। धारणा एक चीज पे ध्यान देना, चाहे अभी जैसे मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान देना, मंत्र बोल रहे हैं तो मंत्र पे ध्यान देना, कैंडल लाइट मेडिटेशन कर रहे हैं तो कैंडल लाइट पे ध्यान देना, उसको कहते हैं धारणा। किसी चीज पे खुद का फोकस करना। ध्यान और समाधि ऐसा होता है कि खुद लगता है, हमें उसमें कुछ करना नहीं है। मंत्र बोलते बोलते हम खुद मंत्र हो जाते हैं, मेडिटेशन करते करते खो जाते हैं मेडिटेशन में, खुद के अंदर खो जाते हैं, उसको ध्यान बोलते हैं। मेडिटेशन एब्जॉर्प्शन। आखिरी आता है समाधि, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जानना कि हम एक ही हैं, द्वैत भाव से अद्वैत भाव में आने को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। जानना कि ये यूनिवर्स, ये कंप्लीट कॉस्मॉस एक ही है, हमारे अंदर ही है, आत्मा परमात्मा सेम ही है, चैतन्य आत्मा, साक्षी, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एक ही है। बस इस संसार में आने के बाद अलग फॉर्म्स नजर आते हैं, सब कुछ अलग नजर आता है। ये जानना कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का चम्मच, मिट्टी का घड़ा, तीनों फॉर्म्स अलग हैं, मगर उनका स्वभाव आखिर मिट्टी ही है, हम वो नेचर ही है, उसी पंचकोश से ही बने हैं। हर एक फॉर्म का स्वभाव, नेचर सेम है। हर चीज, हर फॉर्म प्यार चाहती है, लव, कंपैशन, संतोष, हैप्पीनेस, ब्लिस, पीस। ये जानना सेल्फ रियलाइजेशन है। इसको जान के, सिर्फ जान के, कुछ खोजना नहीं है, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ जान लेने से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। You feel happiness all around, all the time. Take a deep breath in and relax. प्रेयर पोजीशन में आएंगे, 3 बार ओंकार करेंगे। ओ
palms, palms on eyes, on your head. Bless yourself. Bless your near and dear ones. Bless everyone with positive energy, good health, and happiness. Peace. Slowly open your eyes and relax. एक बार बोलेंगे, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you for joining, everyone. Have a wonderful day. Thank Bye. you, Anjali. Thank you.